Good morning, class. We are discussing the paper Supply Chain Management, and I have already provided you with few of the practice questions that will help you revise in the last minute of your exam. Okay, also I provided you the two case studies. Case study is very important because it will come for 20 marks. So please do watch those videos comprehensively, and if you have any doubt, you can just ask. Okay, so starting the practice question 5. So just see the question. The question is, you need to analyze the role of transportation in supply chain management. Also, you need to discuss the different modes of transportation and their performance characteristics, right? And you need to evaluate the design options, okay, for a transportation network and the trade-offs involved in transportation design decisions. है ना कि आप अगर एक नेटवर्क को फॉलो करोगे तो दूसरे नेटवर्क में क्या मिस आउट करोगे ओके सो यू नीड टू डिस्कस ऑन दैट लेट्स सी हाउ वी कैन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस so this type of questions need to be answered like this. First part was the role of transportation in supply chain management. See, the role of transportation in supply chain management. Okay, so you can just write it down like this, that transportation is a critical component of the supply chain management, and it directly impacts the efficiency, the cost and the reliability of the entire supply chain. You agree with this? It also involves the movement of goods from supplier to manufacturer and between manufacturer facilities and finally to the customers. Transportation में यही होता है. And effective transportation मतलब क्या होता है? Ensuring that it reaches on time, timely, delivery is timely, it reduces the cost, enhances the customer satisfaction, also supports the overall strategic goal of the supply chain. Okay. So now we have discussed with the first part, role of transportation supply chain we have discussed. Now discussing the second part. Okay. The second part of the question, the modes of transportation. What are the modes of transportation available and their performance characteristics? So we know that there are different modes of transportation and each have their own limitations, like किसी का cost ज़्यादा है, किसी की speed, किसी की capacity and किसी की reliability. Okay, so you need to discuss and comprehend on this, on their characters. Okay. Okay, the first we are discussing is the road transportation, means basically the trucking and all these facilities. So उसमें क्या you can just write it down, that road transportation, trucking, etc. is the facilities available, and the performance characteristics is, if we discuss on the speed, then the speed is moderate, faster than the rail or sea, but slower than air. So this way you can just comprehend each of the performance characteristics. So if we discuss on the cost, then the road transportation is generally the cost is lower, but lower than air, but higher than the rail and sea for long distances. If we talk about capacity, then capacity may be flexible. Basically, it is suitable for small to medium sized loads. Okay. If we talk about reliability, then it is reliable, good enough for short distances, and medium for good enough for short and medium distances. Okay. If we talk about the flexibility, then the flexibility is fair enough because it can reach to remote and urban areas directly, right? So, and the application is, it is ideal for basically the last mile delivery, है ना, short deliveries जो आपको करवाना है वहां पर बेस्ट है, ठीक है, and the areas जहां पर आपका road infrastructure सही है, ठीक है. दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर रेलवे के बारे में डिस्कस करें तो रेलवे इज द सेकंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्पीड, देन स्पीड इज मॉडरेट, स्लोअर देन रोड एंड एयर एंड फास्टर देन सी, राइट. इफ यू टॉक अबाउट द कॉस्ट, देन कॉस्ट तो आपका ऑफ कोर्स रोड और एयर से कम पड़ता है रेलवेज का, है ना, बट सुटेबल भी होता है लॉन्ग डिस्टेंस और बल्कि शिपमेंट्स के लिए, ठीक है. कैपेसिटी की बात की जाए तो काफी हैवी वॉल्यूम्स कैरी हो जाता है. रिलायबिलिटी की बात की जाए तो थोड़ा सा रिलायबिलिटी भी बेटर है, बट थोड़ा वेदर कंडीशंस में वो डिलेज होता है ट्रेन वगैरह, है ना. फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो डिपेंडेंट ऑन द रेल नेटवर्क एंड टर्मिनल्स. ओके, देन इट इज अवेलेबल, द एप्लीकेशन इज सुटेबल फॉर, basically this railway transportation is suitable for bulk goods, raw materials and long distance transportation. Okay, the third is the air transport. If we talk about air, then speed, if we talk about the fastest mode of transportation आपका हो जाता है. cost की बात की जाए तो expensive है other modes of transportation से. capacity की बात की जाए तो limited capacity है, because the aircraft size पे वो depend करता है, weight restrictions होते हैं, ठीक है. reliability की बात की जाए तो बहुत punctual रहता है, well defined schedules रहते हैं,
फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो लिमिटेड टू एयरपोर्ट बट कैन बी कंबाइंड विद अदर मोड्स ऑफ, मतलब एयरपोर्ट तक तो पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर आपको लोकल डिलीवरीज जो है वो यूज करने होंगे ना। एप्लीकेशन ये बेसिकली हाई वैल्यू आइटम्स के लिए यूज होता है, या टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए होता है, या फिर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली जनरली देखा जाता है। फोर्थ हो गया सी ट्रांसपोर्टेशन, इसमें अगर परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक देखिए, स्पीड देखी जाए तो स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कॉस्ट की बात की जाए तो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। कैपेसिटी हाई कैपेसिटी कैरी करता है। रिलायबिलिटी सब्जेक्ट टू वेदर कंडीशन अगेन। फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो ये जो है पोर्ट्स तक रहता है, देन अगेन आफ्टर दैट उसके बाद हमें अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कंबाइन करना पड़ता है, ठीक है। ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड या बल्क कमोडिटीज या नॉन अर्जेंट शिपमेंट जो रहते हैं वहां पर यूज किया जाता है ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जो पाइपलाइन के थ्रू जैसे ऑयल वगैरह ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसकी स्पीड जो होती है कंटिन्यूअस होती है बट स्लो मूवमेंट होता है। कॉस्ट जो होता है वो ठीक ठीक होता है, लाइक कॉस्ट इफेक्टिव है फॉर द ट्रांसपोर्टिंग द लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। कैपेसिटी की बात की जाए तो सुटेबल फॉर कंसिस्टेंट एंड लार्ज स्केल फ्लो। रिलायबिलिटी की बात की जाए तो लेस अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो फिक्स्ड रूट होते हैं और लिमिटेड टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ गुड्स के लिए, सबके लिए नहीं है। ऑयल वगैरह या इस टाइप के गैसेस एंड लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल होता है पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। एप्लीकेशन की बात की जाए तो इट इज यूज्ड फॉर प्राइमरी फॉर ऑयल, नेचुरल गैस एंड अदर लिक्विड्स और gaseous commodities. Okay. Now talking about the design options for the transportation network. Transportation network में design options जो हमने पढ़ा है, तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो we have several strategic decisions to be taken there. मतलब बहुत सारे तरह के आपके डिजाइन नेटवर्क इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि आपको क्या करना है कि जब वो नेटवर्क डिजाइनिंग आप करते हो तो उसमें किस किस बात का ध्यान रखना है, आपको कॉस्ट का ध्यान रखना है कि उन नेटवर्क या उन ट्रांसपोर्टेशन मोड को चूज करो अपना नेटवर्क बनाने में जिसमें थोड़ा सा जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जो स्पीड, रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है ना, तो इन सब चीज का ध्यान रखकर। तो अभी फिलहाल अपने 3 से 4 5 नेटवर्क डिस्कस करेंगे दैट आर वाइडली यूज बाय द कंपनीज। तो पहला हो गया हब एंड स्पोक नेटवर्क। हब एंड स्पोक नेटवर्क में क्या होता है ना कि गुड्स जो है वो सेंट्रल हब पर ले जाया जाता है, ठीक है, सेंट्रल वेयर हाउस पर ले जाया जाएगा और फिर वहां से सॉर्ट आउट करके फिर उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसका यही होता है हब एंड स्पोक। एक कैसा होता है साइकिल का हब, स्पोक जो होता है वो एक बीच में इनका हब है और ये चारों ओर अलग अलग जगह जो है यहाँ से ही भेजा जा रहा है अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज करके जहां जैसी फैसिलिटीज है। बट बात ये है कि एक जगह वो कलेक्ट हो रहा है, वहां से वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको कहते हैं हब एंड स्पोक नेटवर्क, ठीक है। एडवांटेज तो ये है कि ठीक है भाई एक जगह पे होता है तो सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, और आप सारे जगह पर सेम ये भेज रहे हो तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस होता है, ठीक है। हाउएवर इसका डिसएडवांटेज ये है कि ऑल द गुड्स हैज टू कम टू ए सेंट्रल प्लेस। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि इनका लॉन्गर लीड टाइम हो जाता है, ठीक है, और हायर डिपेंडेंसी ऑन द हब्स एफिशिएंसी। उसके बाद आप जिस जगह पे भेज रहे हो वहां का हब कैसा, वहां का इंफ्रा कैसा है, उस पर ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है। ओके, तो एग्जांपल इसका है कि फेडेक्स बेसिकली जो है वो यूज करता है हब एंड स्पोक मॉडल एंड with Memphis at its primary hub for sorting and redistributing packages. Okay. नेक्स्ट अगर बात की जाए सेकंड नेटवर्क की, तो एक होता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में क्या होता है ना, यहाँ पे जो होता है गुड्स जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डायरेक्टली ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें कोई इंटरमीडिएट स्टॉप्स नहीं होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो इसका फायदा तो ये है कि चलो भाई फास्टर डिलीवरी हो जाता है, लोअर रिस्क ऑफ डिलेज होता है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि हाई ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आप ट्रांसपोर्टेशन मोड चेंज नहीं कर रहे हो। अगर लोकल एरिया में पहुंच रहे हो फिर भी आप वही अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हो, आप लोकल एरिया की ट्रांसपोर्टेशन का फायदा नहीं उठा रहे हो, तो हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाता है क्योंकि आपको काफी कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग करना पड़ता है ना। तो इसका एग्जांपल है साउथ वेस्ट एयरलाइन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क यूज करता है, अलाउइंग फॉर डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन सिटीज विदाउट रिलायंस ऑन हब्स। हब्स का यूज नहीं करता, वो डायरेक्ट मतलब ये करता है, ठीक है। थर्ड मेथड हो गया मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड में बेसिकली क्या होता है ना, ये हब एंड स्पोक जो हमने पढ़ा कि एक सेंट्रल है वहां से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और एक पॉइंट टू पॉइंट हुआ, इन दोनों का मिक्सचर होता है मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड में क्या होता है कि उनका हब भी रहेगा और वो मतलब वहां से डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, प्लस अगर उनको सही लगे तो वो पॉइंट टू पॉइंट कुछ कुछ गुड्स ऐसा हो जिसमें कि सेंट्रल हब तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक भेजा जा सकता है या सप्लायर से कस्टमर तक भेजा जा सकता है डायरेक्टली। तो उस गुड्स को वो डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट वाला ट्रांसपोर्टेशन वहां यूज करते हैं। तो ठीक है, ये वाला इसमें एडवांटेज ये है कि ठीक है बैलेंस्ड कॉस्ट एंड स्पीड रहता है ना, कॉस्ट भी बैलेंस हो जाता है, स्पीड भी बैलेंस हो जाता है एंड अकॉर्डिंगली इनका मतलब इनको काफी कस्टमाइजेशन का भी ये फैसिलिटी मिल जाता है।
फिर डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि हब भी रखना है, पॉइंट टू पॉइंट भी देना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेल कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। तो अभी फिलहाल तो जो बहुत सारे जो कंपनीज है, मेनी दिस फ्लिपकार्ट एंड ऑल, दे आर यूजिंग दिस वन ओनली द, ठीक है, मिक्स्ड नेटवर्क यूज कर रहे हैं, ओके, फॉर देयर रूट्स एंड डायरेक्ट शिपमेंट्स फॉर स्मॉलर और अर्जेंट डिलीवरी। जो अर्जेंट डिलीवरी है, स्मॉलर ये है, तो उसको डायरेक्ट भेजते हैं, अदरवाइज देन हब के थ्रू भेजते हैं, ठीक है। हब के थ्रू क्या होता है, पैसे थोड़े से बच जाते हैं ना। तो दीज वर द थ्री networks that I have discussed here in the question. Okay, then if we talk about the trade-off in transportation design डिसीजन, जब ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन मतलब कर रहे हैं कि किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड क्या रूट लेना है, तो फिर उसमें क्या क्या चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ मतलब अगर आप कॉस्ट, अगर आप प्लेन चुनते हो, है ना, एयरवेज चुनते हो, तो आपको क्या होता है कि स्पीड मिलता है बट कॉस्ट भागता है ना। स्पीड का एडवांटेज मिलता है, कॉस्ट का डिसएडवांटेज मिलता है। अगर आप रेलवेज लेते हो तो आपको कॉस्ट का एडवांटेज मिलता है, स्पीड का डिसएडवांटेज। तो ये इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ। एक चीज मिलेगी तो दूसरा खोएगा, मतलब रिस्क और रिटर्न को आपको मैनेज करना है। तो जब आप ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन करते हो, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डिजाइन करते हो, तो आपको किस तरह से इनको ट्रेड ऑफ करना चाहिए कि आपका बैलेंस आउट हो जाए। तो फर्स्टली इफ वी डिस्कस अबाउट द कॉस्ट वर्सेस स्पीड, है ना, तो फास्टर ट्रांसपोर्टेशन मोड लाइक एयर, रोड जो है वो एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू स्लोअर जो सी और ये हो गया, है ना। तो हमें करना क्या चाहिए, कंपनीज मस्ट डिसाइड वेदर द नीड, स्पीड का नीड है, हायर कॉस्ट लगा के अगर फिर भी प्रॉफिट बन रहा है, देन गो फॉर दैट, अदरवाइज देन डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट वैल्यू और कस्टमर का एक्सपेक्टेशन, उस पर डिपेंड करता है ना। कॉस्ट वर्सेस स्पीड अगर बात की जाए, अगर रिलायबिलिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी बात की जाए, तो हाईली रिलायबल जो है वो तो आपका जो है रेलवेज एंड पाइपलाइन है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल कम है क्योंकि वहां पे ऑप्शंस कम है, जबकि रोड वगैरह है, रोड एंड एयर, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बट रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम है क्योंकि वो एक्सटर्नल वेदर और ट्रैफिक वगैरह से इफेक्ट होते हैं ना। अगर ट्रैफिक ज्यादा रही तो इफेक्ट होंगे। तो इसका क्या मतलब आंसर हो सकता है कि इट हैज टू बी क्रिटिकली, मतलब इसको एनालाइज करना चाहिए कि टाइमली डिलीवरी वर्सेस द नीड टू रीच डाइवर्स लोकेशन, है ना, कि वहीं पर टाइम ले जाए कि कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है, किस किस लोकेशन को कवर करना है ना। अगर सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज की बात की जाए, तो हब एंड स्पोक जो था वो तो सेंट्रलाइज था, है ना, बट उसमें था कि कॉस्ट सेविंग हो रही थी थ्रू कंसोलिडेशन, वाइल जो पॉइंट टू पॉइंट है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वो पॉइंट टू पॉइंट जा रहा है ना, तो इसमें थोड़ा सा आपका एक्सपेंसिव पड़ रहा है। तो इसमें कंपनीज को इवेलुएट करना चाहिए कि ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड सेविंग है, सर्विस लेवल्स है, सो दैट दे कैन चूज अ प्रॉपर स्ट्रेटेजिक गोल्स। ओके, अगर स्केलेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, तो स्केलेबल नेटवर्क मतलब हब एंड स्पोक है। स्केलेबल मतलब काफी बड़ा बना सकते हैं ना, वो हब एंड स्पोक है क्योंकि वो लार्ज वॉल्यूम्स इफेक्टिवली बिल्कुल आराम से ले जा सकता है, कोई कॉम्प्लेक्सन नहीं होगा, है ना। सिंपलर नेटवर्क, जबकि पॉइंट टू पॉइंट है जो थोड़ा सिंपलर नेटवर्क है, तो उसमें क्या होता है कि हाई वॉल्यूम कैरी नहीं हो पाता है ना। तो इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना चाहिए। द चॉइस डिपेंड्स ऑन द कंपनीज ग्रोथ प्लान, वो ग्रोथ प्लान कर रहा है, स्केलेबिलिटी पे बिलीव करना चाह रहा है, मतलब बहुत बड़ा होना चाह रहा है, तब तो उसको हब एंड स्पोक यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो हर जगह सिर्फ डायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, कॉस्ट बहुत ज्यादा भाग जाएगा। So it depends on the company's growth plan and the ability to manage the network complexity effectively. So that way you answer the question. There's, you can just write 3 to 4 sentences that yes, transportation is vital, and one need to understand the performance characteristics of all the modes of transportation and carefully design the transportation network, and that is the only way the supply chain operations can be optimized, and strategic decisions like the balancing of the cost, balancing of the speed, reliability, flexibility, इन सबको ध्यान रख के करना चाहिए to get the to reach to the competitive goal. एंड ऑल्सो थ्रू आउट द डिजाइन जो है मैनेजमेंट और कंपनीज को जो है ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड रिस्क और जो है फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी जो है वो इनहेंस करना चाहिए टू इनहेंस देयर सप्लाई चेन रेजिलियंस। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस unit and this question as well. I have tried covering it in a comprehensive way, and this is the way we expect you to answer the questions. You need to answer each part of the questions asked, each part in the questions, okay, because we allot step marking for each part you are attempting. Okay, so that way we do. uh, Please go and watch all the previous practice questions I have provided you.
If there is any doubt, then you can just comment in the comment box, and if you like the video, you can just hit the like button. For more practice questions, you can just subscribe the channel. I'll be providing you with the coming practice questions from all the units left. Okay, so thank you so much. Have a good day.